Watching a India-Pakistan match in India is different because you have Indian fans across altogether. But watching a India-Pakistan match in Dubai is entirely different because the crowd is literally 50-50. And even in USA, there will be like a completely divided crowd. पहली बार यूएसए में T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और पहली बार नहीं लेकिन दूसरी बार क्या इंडिया फाइनल के हर्डल को पार कर पाएगी? यही तो है हम सब के मन में सबसे बड़ा सवाल, है ना? वैसे अगर इंडिया की जीत की बात हो रही है तो उससे याद आया कि जीत तो आप भी सकते हो। क्या और कैसे? ये सवाल है। गुड क्वेश्चन। आपको करना यह है कि crickfan.tv पर जाना है, वहाँ क्रिक विन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसके गिव अवे सेक्शन में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। JBL स्पीकर, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवीज़, क्रिकेट मर्चेंडाइज और बहुत कुछ। तो किस बात का इंतज़ार? जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और याद रखिए अगर आप सैटरडे को पार्टिसिपेट करते हैं और सैटरडे को खेलते हैं तो आप बम्पर इनाम जीत सकते हैं। आप लोग ये कीजिए, साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को भी एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू क्वींस ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं सुरभि वैद, मेरे साथ नेहा जैन और एक नई खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ सृष्टि। हेलो सृष्टि। वेरी यंग दिस गर्ल इज, अभी तक पढ़ रही है तो मुझे और नेहा को थोड़ा सा ओल्ड फील हो रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा। How are you? I'm doing good and I'm really happy to be here and I'm really excited also. A bit nervous, but yeah. Don't be nervous. It's all chill. Yeah. They all know, we know. But anyway, talking about World Cup. Yeah. एक हफ्ता हो गया World Cup को? Almost. How has it been for you? It's been actually it's just been a week, you know, so it's actually very early to point out a lot of things also. पर जितना एक हफ्ते में ख़त्म हुआ है, I think more than the matches as well, दूसरे चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात हुई है. One is of course about the pitches and the conditions, जो एक limited stadium में जहाँ मैच खेले जा रहा है, one is that. Second is about the timings that people have been speaking about on and off, how it is matching a certain audience or how it is not matching a certain audience as well. People have been talking about some sort of favoritism, even the players for that matter. And thirdly, also about the associate nations का जो rise हुआ है in this first week. Most matches उन्हीं के साथ भी हुई है. And they have given so far a very decent competition, I would say. You cannot completely like discard them out of this entire World Cup equations also. And we've got to see some interesting matches as well. We've got to see first super over in the World Cup after 12 years, which was between Oman and Namibia, and a very interesting one and a pretty one-sided super over, to be honest. Yeah. I think they made Namibia made some 21 runs, and they just restricted them to just 10 overs. I mean, 10 runs in that particular over as well. But I was very happy to see the associate nations coming up and playing that kind of cricket. थोड़ा thrill उनके end से भी आना चाहिए. Now that they have been given a chance to play in this particular format as well, जो आपने कहा कि पहले कभी ये format नहीं हुआ, that 20 countries have played a World Cup as well. So many things, but I would like to hear from you as well. Yeah, so personally I would say कि I was also expecting कि like if you see ऐसे associate nations जो खेल रहा है तो दोनों teams are fighting against each other and it's not going to be ऐसे कि like one sided win. जैसे अभी ओमान एंड नामीबिया है, दोनों नेशंस लाइक इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव मैच. यू कांट एक्सपेक्ट कि लाइक एक साइडेड मैच होगा या वैसे होगा. एंड आई पर्सनली रियली एन्जॉयड दैट मैच. लो स्कोरिंग थ्रिलर. लाइक आई थिंक जब बैटिंग हुई कुछ तो 100 के अराउंड, 110 के अराउंड ही था और उसके बाद भी सुपर ओवर हुआ, तो दैट वॉज प्रिटी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड लाइक नेहा पॉइंटेड आउट, इट्स टू अर्ली टू से कि लाइक कैसे है पिचेस वगैरह. बट हम लोग अभी जस्ट IPL देख कर आए एंड हमने देखा 250 प्लस हो रहा है, 200 हो रहा है. तो आई वुड से वी शुड डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि वैसा तो लाइक T20 क्रिकेट डजंट वर्क लाइक दैट ऑलवेज. इट्स ओनली लाइक लीग क्रिकेट में वैसा होता. तो आई वुड से कि टू अर्ली टू से, बट पिचेस स्लो है एंड लेट्स सी हाउ आवर टीम परफॉर्म्स देयर. Yeah, our team is... we'll talk about our team, but... but do you have to say like anything about the low-scoring matches that happened between South Africa, Sri Lanka? Yeah, South Africa and Sri Lanka was one match which is talked about the most right now because बहुत सारे issues भी थे उस मैच के प्रायर जो श्रीलंका ने बताया. अब अनफेयर था उन पर या नहीं वो आप बताइए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है. अगर आपको सुबह
5 बजे उठना पड़ रहा है मैच के दिन, या आपको 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है स्टेडियम पहुंचने, या स्टेडियम जैसे ही मैच ख़त्म हो वैसे ही आपको अपने दूसरे वेन्यू के लिए निकलना है, अपने दूसरे मैच के लिए निकलना है, क्योंकि वो 3 अलग वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं, अनलाइक अ फ्यू टीम्स जो सेम वेन्यू पे खेल रही है. And are also staying closer to the... And are, exactly. But having said all those things, Hasaranga ने भी बोला कि we can't use it as an excuse for our performance. True. But the fact that they won the toss and they elected to bat first shows कि उन्हें conditions नहीं पता थे, उन्हें नहीं पता था कि pitch कैसे react करने वाला है या pitch कैसे perform करने वाला है. And I mean, अगर वो उस मैदान पर 120 रन भी बनाते हैं, could have been a winning total. Yeah. तो वो रनर बॉल भी उस पिच पर एक्चुअली विनिंग टोटल हो सकता था, बट ऑब्वियसली बिकॉज उन्हें नहीं पता था और वो शॉट मारने के चक्कर में 77 पर ऑल आउट हो गए, 76 पर आई बिलीव, या 77 पर ऑल आउट हो गए. और ऐसा भी नहीं था कि साउथ अफ्रीका को वो चेज़ करने में एकदम आसानी से चेज़ कर ली, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीकन बैटर्स को देखा है डूइंग व्हाट देव डन इन IPL. एंड इट्स नॉट जस्ट IPL, इट्स नॉट जस्ट लीग क्रिकेट. आई बिलीव कि T20 फॉर्मेट ही वैसा है जो अब बहुत ज़्यादा बैटर डोमिनेटेड हो गया है, जहाँ बैटर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं. लेकिन इस वर्ल्ड कप में अनलाइक IPL जहाँ ऐसा लग रहा था कि वो जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं था पूरे 2 महीने. बीच में कोई मैचेस ऐसे थे जहाँ वो बैलेंस नज़र आ रहा था कि बैटर्स भी थे गेम में, बॉलर्स भी थे गेम में, लेकिन ज़्यादा थोड़ा ना वन साइडेड बैटर्स की तरफ था. वैसे ही ये वर्ल्ड कप, टू सून टू से दिस, बट अभी तक बॉलर पर ज़्यादा डिपेंडेंट नज़र आया. बॉलर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं. उनके जो वो कहते हैं ना कि 2 साइड होते हैं वेइंग मशीन के, वो अभी बॉलर्स ज़्यादा भारी नज़र आ रहे हैं. तो वही हुआ है, हमने देखा भी एंड्रिक नोकिया जो IPL उनका एकदम ऐसे भुलाने वाला IPL खेला है उन्होंने इस साल, लेकिन the first game in the World Cup and he performed like we know he can. And उनका confidence इतना boost हुआ होगा उस performance से, not just उनका, साउथ अफ्रीका का, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उन पर वो भरोसा दिखाया, इंजरी से वापस आए हैं और भरोसा दिखाना भी है क्योंकि बड़े प्लेयर हैं और कमाल कर चुके हैं पहले. तो आई थिंक पिचेस का भी आई वुड वांट टू से वन थिंग कि हम सबको पता है कि पिच एडिलेड में बनकर आई है और मोर देन स्लो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है पिच में. लाइक बॉल टप्पा खाने के बाद बहुत मूव हो रही है, बाउंस अनवेरिड बाउंस है, पेस ज़्यादा है और 2 पेस्ड पिच नज़र आ रही है अब तक. तो क्या होता है कि अगर अब ये नई पिच है, इस पे ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं गया है, तो जब तक ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला जाएगा तब तक ये फ्लैट नहीं होगी. तो वो हाई स्कोरिंग मैचेस आई बिलीव कि हमें देखने नहीं मिलने वाले, एटलीस्ट न्यूयॉर्क में. आई डोंट नो अबाउट दी अदर पिचेस, बट न्यूयॉर्क में हमें वो हाई स्कोरिंग मैचेस शायद अंत में जो लास्ट 1-2 मैचेस हो तब तक अगर पिच फ्लैट हो गई तो हो सकते हैं, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक वैसा कुछ होगा. बट दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर इंडिया, कीपिंग इन माइंड कि वी हैव जसप्रीत बुमराह, वी हैव सीन अर्शदीप सिंह ने क्या किया है. तो I think that's a Pandya as well. Pandya as well. We've so hopefully it turns out good for India. Yeah, but there are one which is very relevant और एक time को लेकर भी issue है where we saw this match between West Indies and PNG where जो उनके सुबह के टाइमिंग पे था और अपना इवनिंग टाइमिंग था, and people are saying that there 2 things happened. The prices were super high and there was an extremely low turnout. Yeah. Typically in a T20 format, at least from my opinion, I will enjoy watching a match if it is in the evening time, which is post 7 PM as well. I understand कि वो एक particular time पे उन्होंने रखा है to cater to a certain subcontinent audience, which is us. But let's not forget, the idea is also to tap cricket into new countries. So you have to make it convenient for them also, ठीक है? And let's say a team like West Indies and PNG, ठीक है? उनके वहाँ early morning वाला मैच है. आई डोंट थिंक इंडिया में इवनिंग में भी होगा तो लोग इतना सीरियसली देखेंगे. सो स्पेशली दी स्मॉलर नेशंस, एटलीस्ट अगर वो नॉन इंडिया मैच है तो एटलीस्ट आई वुड फील कि नॉन इंडिया मैच को तुम उनके टाइम के हिसाब से रखो, बिकॉज अनलेस इट इज़ अ प्ले ऑफ, आई डोंट थिंक वी विल ऑल्सो वेरी सीरियसली सी अ वेस्ट इंडीज वर्सेज PNG और एनी एसोसिएट नेशन का मैच फॉर दैट मैटर. इफ देयर आइडिया इज टू केटर टू अस, वी विल ऑल्सो बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द मैचेस दैट वी सी एज वेल, एंड स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. सो मे बी आई वुड हैव अंडरस्टूड कि तुमने इंडिया मैचेस ये टाइम पे रखे हैं विच इज़ अर्ली मॉर्निंग उनका एंड केटरिंग टू अस ऑडियंस.
because it's not just cricket, they have a lot of other factors also in place when you kind of schedule a tournament also. तो मुझे लगता है वो factor में if their idea is also to tap cricket into new countries and associate nations, it's clearly defeating the purpose. But I feel I have a slightly different opinion than yours. I feel कि while catering to a new audience, they will obviously not forget the older ones or the ones जिसकी वजह से cricket इतना viewership, अगर हम cricket के viewership की बात करें तो वो massively India से जाती है, चाहे वो कोई भी मैच हो. एंड आई एग्री अबाउट एसोसिएट नेशन. ऐसा नहीं है कि हर कोई बैठ के वो मैच देखेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो वो मैच देखते हैं. ओमान नमीबिया की बात कर रहे हैं. आई मीन कोई अगर आप नॉर्मल जो क्रिकेट फॉलोअर नहीं है उसको जाके पूछो तो दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, बट एनीवन who is a cricket fan knows the match and has seen the match is talking about the super over. हमने बात की Because it has reached a super over. Yeah, but also about maybe not otherwise. About Nepal also. Nepal is also one of the associate nations. Nepal की viewership काफ़ी अच्छी है. And I've heard stories about how Nepal का वो जो match था वो देखने के लिए Sea of Blue थी वहाँ. Not Sea of Blue because नेपाल के जोशी में भी blue color आता है. And I've heard stories कि कैसे मेलबर्न में किसी ने अपनी कार बेची है ताकि वो जाकर नेपाल को देख सके खेलते हुए. सो यू नो दीज आर वेरी बिग थिंग्स फॉर एसोसिएट नेशंस एज वेल. बट टाइमिंग हाँ थोड़ा सा इफ़ आई थिंक उनके POV से, US के POV से या फिर वेस्ट इंडीज़ के POV से इट्स थोड़ा सा ऑड बिकॉज सुबह 10 बजे 11 बजे मैचेस. बट देन अगेन बिकॉज इतने सारे मैचेस भी हो रहे हैं एक दिन में तो हर मैच का टाइम अलग है. तो कोई मैच इंडिया में भी सुबह हमारे सो के उठने से पहले ख़त्म हो जाता है अगर you're not someone जो 6-7 बजे उठ जाए. तो which is most of us, not Neha because I know Neha wakes up at 7. But I just feel इंडिया की बात अलग है. यही सिमिलर सीन अगर हमने इंडिया में रखा होगा जहाँ इंडिया में सुबह 10:30 की मैच है तो इंडिया being like a cricket crazy nation, people would have still turned up. Though it's a weekday and though it's working for most people at 10:30 in the morning, it will still kind of be in a time that people will still turn up for the match because cricket is like God and religion and everything for them. Comparatively कम होगा. But then that is still like a problem. And I think if sorry. Yeah. I was saying कि like Neha pointed out, the aim of keeping the World Cup in US is to promote cricket and to grow cricket in other nations. So वो main purpose है. तो I think कि like she pointed out कि US, West Indies उन सब nations के लिए timings are not favorable. So ये भी तो हमें understand करना चाहिए, like while not forgetting the old audience, we should also understand ना कि like अगर हम if we are aiming to grow the sport, we have to understand the preferences of the other countries also, right? So I think वो बहुत important factor है because like we never expected कि US में World Cup होगा पहली बात तो. So वो that's a very big factor. So we need to be empathetic about that also, right? So But there's one more area that we are forgetting and that is मैंने आकाश चोपड़ा को ये बोलते हुए सुना था उनके वीडियो में कि यार ब्रॉडकास्ट की जब बात आती है ना तो इंडिया सबसे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अर्न अगर कोई करता है ब्रॉडकास्टिंग में वो इंडिया है. सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया की होती है. तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग मनी होता है इससे एसोसिएट नेशंस को भी हेल्प होती है. तो अगर ब्रॉडकास्टिंग मनी अगर व्यूअरशिप इधर सुबह 8 बजे क्योंकि तो व्यूअरशिप ऑब्वियसली गिरेगी. व्यूअरशिप गिरेगी तो द मनी दैट दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट ऑल्सो विल ड्रॉप. तो विच विल इवेंचुअली अफेक्ट द एसोसिएट नेशंस एज वेल. I could be, I mean this is something that makes sense as well, but again कुछ तो balance होना चाहिए. Some middle ground. But as you said about associate nation को help with the terms of money, I remember जो PNG team है, I think Australia and New Zealand helps them a lot in terms of funding. So it's not like they're entirely dependent on the broadcasting also. They have other avenues and other teams also which helps them to fund and grow the cricket and everything of that sort. And coming to PNG, what an interesting match they had with West Indies as well. They come unbeaten in their regional qualification. So they come with a lot of confidence. And that was such a close match. A team like West Indies, I think unko last 2 overs में 13 runs चाहिए था. So that was quite close. I'm excited to see the rise of associate nations in this. Especially Uganda and Namibia coming ahead of Zimbabwe. Where is this team gone? Which is like a test playing nation as well. So we hope to see some upsets. I remember that Netherlands and South Africa are in the same group. And Netherlands has beaten South Africa in the earlier World Cup as well. So I hope they continue that upset. I really want to see actually some upset, associate nations grow. Some upset to keep the match also a little exciting. क्योंकि अभी तो पूरे world में ये 4 countries dominate
compete कर रहे हैं. And the idea to keep it in the US, the idea to have 20 teams is eventually to have maybe new winners, not overnight, baby steps right now, but to eventually it will be interesting to see. जैसे हम मुंबई, the first हम step, IPL में बोलते हैं, मुंबई में you know, you have 5 trophies, CSK, you have 5 trophies. Now we want a new winner. Similarly, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है. मुझे लगता है RCB होना चाहिए, but ठीक है. But similarly, to see someone grow over the years, a new nation altogether will be interesting to see as well. Yeah, that is true. that अब will help हमारा the sport also a lot. So Yeah, that is true. अब हमारा थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है. आप बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है. क्या आपके हिसाब से थोड़ा मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए? मिडिल ग्राउंड तो वैसे ढूंढना ही चाहिए, लेकिन क्या आपके हिसाब से दिस इज़ फाइन कि हाँ इंडियन ऑडियंस को केटर करो क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जाती है, या फिर आपके हिसाब से यूएस की ऑडियंस को केटर करना चाहिए या वेस्ट इंडीज़ की ऑडियंस को केटर करना चाहिए जहाँ एक्चुअली में ये मैचेस खेले जा रहे हैं? वो आप मुझे बताइए. और अब बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, तो जब वर्ल्ड कप की बात आती है, एंड आई थिंक आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बोथ माई नेशन एंड द नेबरिंग नेशन, आर नेशन एंड द नेबरिंग नेशन, इट इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. क्योंकि यार हमें साल में एक बार ये मैच देखने मिलता है एंड इट इज़ द बिगेस्ट राइवलरी. हाँ, द ओल्डेस्ट राइवलरी होगी यूएसए और कनाडा की, बट द बिगेस्ट क्रिकेटिंग राइवलरी इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड वो मैच देखने में जो मज़ा है, जो माहौल होता है, नॉट जस्ट इन द स्टेडियम. आई हैव नेवर सीन दैट मैच इन द स्टेडियम. नेहा, यू हैव. आई नो द स्टोरी, प्लीज डू शेयर इट विद अस. Yeah, so I was that unlucky fan जिन्होंने 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था. I had watched that dreadful match जहाँ हम हमें वॉश्ड आउट कर दिया गया था लिटरली बाय द बैटर्स बाबर आजम एंड रिजवान. एंड एक मैच मैंने यहाँ देखा इन दी ओडीआई. So watching a India-Pakistan match in India is different because you have Indian fans across altogether. But watching a India-Pakistan match in Dubai is entirely different because the crowd is literally 50-50. Neutral venue. Neutral crowd. And it is equally exciting for everyone there. So even from their playing perspective, they have crowd support. Both the teams have crowd support entirely. And where I was sitting, I still remember, वहाँ लोग झगड़ रहे थे आपस में ऐसे verbally. Literally, मतलब anything. That was like no nonsense. कुछ भी बात कर रहे हैं, पुलिस को बोल रहे थे ये देखो क्या बोल रहा है मेरे देश के बारे में. And he was like, dude, sort करो. I am not getting involved in this. And you won't believe, after Pakistan won that match, when we stepped out, because we were wearing Indian jerseys, right? So people literally coming to us, they stopped their car, कांच खोल रहे, अरे हमने आज मैच नहीं देखा, आज कौन जीता? And we were like, that is so rude, guys. I mean, and that's why I know the difference of watching this match in India and back in Dubai because of the divided crowd. And even in USA, there will be like a completely divided crowd. So it'll be very interesting to see the match. I mean, how the people there feel about the match. And I'm sure entire USA is excited about this one match, which is 9th of June. And I think it is for the first time that India-Pakistan is playing in USA. And USA is again like a home ground for both Indians and Pakistanis. So it'll be really exciting for them, exciting for us watching back home also. And when I talk about India-Pakistan, I also remember somehow 2007. The first World Cup that we had, that was with Pakistan as well. I think that was one of the most interesting World Cups of all time. I think our team entered with nothing to lose. All youngsters, all young guns, everything with a free mind. And I think right now we are entering the World Cup. We need to win. So that is the two difference with so many expectations. And 2007, I mean, if I just look at the entire squad now, I was thinking about it that day. We had Rohit, we had Agarkar, we had Gambhir. Cut chase 2024, Rohit Sharma is the captain of that squad. Ajit Agarkar is the selector and Gambhir probably the potential coach. So just look from 2007 to 2024. Things have changed, but they haven't changed at all. Everybody still remains connected to that. I hope nothing changes from that World Cup in this World Cup. I want the result to replicate. Yeah, but India-Pakistan goes beyond cricket also, as you rightly said. There are a lot of firing shots from the commentators and also an audience to get literally crazy. And even if you go to office and stuff, it's only match and match and match that people see. But other than that, Srishti, what do you think is the biggest rivalry in India-Pakistan? Which two players? For me, it's Virat Kohli and Haris Rauf, right? It has to be that. My favorite cricketing moment ever has to be Virat's 82 against Pakistan. Melbourne. I think it was the best match I've ever seen. And हम सब घर पे साथ में बैठ के देख रहे थे.
इतना एक्साइटमेंट, इतना थ्रिल. नो वन एक्सपेक्टेड इंडिया टू विन फ्रॉम दैट सिचुएशन. कोहली completely turned it around for us. And I'm like, now also I'm anticipating वैसा कोई मैच होना चाहिए, एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम एंड तक जाता है. होपफुली कोहली विंस इट फॉर अस. एंड होपफुली वैसा डाउनफॉल नहीं हो हमारे जो बैटिंग ऑर्डर का होता है हमेशा. तो देखता. I think Kohli usually does it with Pakistan. Be it 2021 when nobody played, it was only Kohli who reached a respectable score along with Pant a little bit. And even in the last T20 World Cup, it was only Kohli who brought us to the winning line. So I think Kohli and Pakistan is a great combination. I'm sure they fear him the most. Hopefully, in the coming match to come as well, we get to see him score big. बट यार जब तुम दोनों ये मैच की बात कर रही थी ना, मेरे आंखों के सामने विजुअल्स आ रहे थे उस मैच की. वो जो छक्का स्ट्रेट उन्होंने मारा था आई थिंक 18th ओवर में, जहाँ से मैच पूरा टर्न हुआ. बिकॉज आफ्टर द मैच ही वाज आल्सो सेइंग कि मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मुझे मारना पड़ेगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर हार्दिक पांड्या, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए थे और उन्होंने जिस मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि हाँ हम निकाल लेंगे, विराट तू कर लेगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, मैच हो जाएगा. एंड द रिएक्शन आफ्टर दैट, द वे रोहित हग्ड विराट, इट शोज कि वे द्रविड सेलिब्रेटेड. या एवरीथिंग. मतलब हमने कितनी रेयरली राहुल द्रविड को कुछ भी सेलिब्रेट करते हुए देखा है. आई नो कि प्लेयर्स उस मेंटालिटी से नहीं जाते जिस मेंटालिटी से शायद व्यूअर्स मैच देख रहे हैं, बट स्टिल इट मीन्स अ लॉट टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड आई थिंक इट्स द सेम फॉर पाकिस्तान एज वेल टू विन अगेंस्ट इंडिया. इट्स अनदर मैच फॉर द प्लेयर्स. इट शुड बी लाइक दैट. बट वो जो यू कांट टेक द इमोशंस आउट ऑफ दिस मैच. जैसे पहले लोग बोलते थे कि भले फाइनल्स हार जाओ पर तुम पाकिस्तान के साथ मत हारना. दैट यूज्ड टू बी लाइक द हियरसे इवन फ्रॉम माय पेरेंट्स का जनरेशन. व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू देम, दे बोलते इंडिया पाकिस्तान हमें जीतना है, बाकी अगर हम हार गए वी डोंट केयर एट ऑल. एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, हाउ कैन वी नॉट मेंशन गंभीर एंड शाहिद अफरीदी. जो ग्राउंड पे हुआ था वो पर्टिकुलर टाइम पे, आई थिंक फॉर मी इट इज स्टिल वेरी फ्रेश. क्योंकि वैसा स्लेजिंग और वर्बल अब्यूज मैंने उसके बाद probably बहुत आए होंगे, but for me that stands out clearly. Both extremely like hyper aggressive, agitated guys at that moment. I think everybody will remember that. And as I said, the rivalry goes a long way back. Abhi probably the players off field are a little friendly and stuff. तो उनके लिए थोड़ा कम हो जाता है because they say that we take it as any other match. But sorry, we fans don't. We want all the drama possible in that particular match. Have to take it as any other match. It creates a lot of pressure for them also. Like because as fans we expect like इतना thriller होगा, drama होगा वगैरह. For them it's a match only at the end of the day, and they need to win it. And now this match is in Big Apple. Yes. Big match in Big Apple. And I think this is what I feel it's going to be, pace versus pace. Looking at the pitches, looking at high scoring match, मुझे नहीं लगता होगा. हो सकता है पर मुझे नहीं लगता होगा. तो मुझे लगता है bowlers are the ones who will dominate. So we have world का best bowler in Jasprit Bumrah. They have Shaheen Shah Afridi, and it will be really nice to see these two battle it out. जो pace unit battle करेगा. उसके अलावा I feel जिस तरह से विराट कोहली obviously perform करेंगे because he has always been the important one when it comes to Pakistan. Always. He has been the important one ऐसे भी, but especially when it comes against Pakistan. किस तरह से रोहित शर्मा left arm pacers को झेलते हैं वो देखना होगा. So it's going to be very interesting. And the captaincy saga, we can't forget that. पिछले वर्ल्ड कप में बाबर आजम यहाँ कैप्टन थे. हम ODI वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वो कैप्टन थे. उसके बाद हमें पता है उनके साथ क्या हुआ था. कैप्टनसी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था. अब उन्होंने दिया था या उनसे ली गई थी, you know, but you never know. And उसके बाद शहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने. फिर इस वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम फिर से कैप्टन बन चुके हैं. आई थिंक अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी T20 सीरीज़ भी हुई थी उसमें भी बाबर आजम ही कप्तान थे. तो आई थिंक पता नहीं उनकी टीम में भी इस समय क्या चल रहा है. मोहम्मद अमीर आउट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं. सो I don't know, बहुत ज़्यादा I'm expecting this match to be very close, and we all are because we love a close match when it comes to India versus Pakistan. We want a thriller, we want drama, we want emotions, we want everything, and we want to win. Yeah. But at the same time,
ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन जो हम हमेशा इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान के साइड भी कुछ ना कुछ तो चले ही जा रहा है इतने महीनों से. Of course, and as they say with Pakistan, you just never know. Who would have thought back in 2012 हमारा ऐसा wash out हो जाएगा? So if they just strike, they strike. Then like you know they are, and that's why they are always in the race somehow, even in the playoffs, because they are very unpredictable. That is their tag. Literally, they are pretty unpredictable. वो कहीं से भी आके कहीं पे भी जीत के they can just literally move ahead. So you just never know with India Pakistan in that way. आई थिंक हम पाकिस्तान को लाइटली तो बिल्कुल नहीं ले सकते. यार हम ले भी सकते हैं क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान उन्हीं के होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड बी टीम के साथ हारा है. मतलब But you know, so you know they just come out from that recently, very unpredictable. unpredictable. But again, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से उनकी बॉलिंग रही है. You know, जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं हम उनके बॉलर्स की बात करते हैं, चाहे वो फिर शोएब अख्तर हो या फिर शहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, हम हमेशा उनके बॉलर्स की बात करते हैं. एंड अब तक न्यूयॉर्क की पिच जैसी नज़र आई है, वो दिख रहा है कि बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं. हमने आंड्रिक नोकिया को देखा जिस तरह से, अगेन अ पेसर रबाडा को देखा, अगेन अ पेसर पथी राणा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी इन दैट श्रीलंका वाला मैच, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका मैच. सो पेसर्स आर डोमिनेटिंग. तो वो एक फैक्टर हो सकता है जहाँ आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ नॉट गुड, इंडिया इज़ बेस्ट ऑब्वियसली. हमारे पास बुमराह है, हमारे पास अर्शदीप है, हमारे पास हार्दिक है, अगर शिवम दुबे से बॉलिंग कर रहा है तो हमारे पास शिवम दुबे भी है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड बॉलिंग तो वो थोड़ा सा एज मिलता है. सो इट्स नॉट, वी कांट गो इन विद द थॉट कि इंडिया आराम से डोमिनेट कर लेगी या इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगी. आई थिंक टक्कर का मैच होगा, एंड आई थिंक वो टक्कर का मैच बॉलिंग यूनिट की वजह से होगा. या तो फिर वॉश आउट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ रेन्स ऑल टुगेदर कंप्लीटली राइट आउट. बेचारे फैंस यार, एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा वो. Imagine traveling from India to New York just to see that match and wash out हो जाए. I don't want to imagine that. But आप बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच से? हम तो बहुत सारा ड्रामा, इमोशन और एक क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से इट्स गोना बी पेस वर्सेस पेस. आपके हिसाब से क्या होगा वो बताइए, और ये भी बताइए कि इंडिया की किस्मत कैसी नज़र आ रही है आपको इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब तक तो किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया है इन वर्ल्ड कप इन जनरल आफ्टर 2011. हाँ, 2011 के बाद से जो सूखा चल रहा है ना. नहीं अच्छा, हम रनर्स अप थे 2014 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, बट उसके बाद से तो जो सूखा चल रहा है, 2013 के बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते है. 2015 में आई थिंक सेमीफाइनल्स, 2019 में सेमीफाइनल्स, 2023 में फाइनल्स. बट ठीक है, वी लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट. अभी हो गया, मूव ऑन ही तो नहीं कर पा रहे हैं नेहा. हो गया यार, अभी कम ऑन गाइस, आईपीएल भी हो गया, अभी चलो. ओके, अगर सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो चांसेस क्या लग रहे हैं, ऑनेस्टली बताओ. सो ऑनेस्टली मेरे अकॉर्डिंग हमारा जो स्क्वाड है, आई एम हैप्पी विद द स्क्वाड. आई वुड एक्सपेक्ट कि रिंकू सिंह को स्क्वाड में लेना चाहिए था. दैट्स वन अपसेट. बट उसके अलावा द स्क्वाड लुक्स बैलेंस्ड. पेसर्स में मुझे थोड़ा लग रहा था कि बुमराह पे वी आर अ लिटिल टू ओवर रिलायंट, बट लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट. एंड मुझे ऐसा लगता है हमारा स्क्वाड जो है सेमीफाइनल्स तक पहुंचने जितना स्ट्रॉन्ग इनफ है. सेमीफाइनल्स में हम हमेशा प्रेशर में आके चोक करते हैं. आई जस्ट होप वो नहीं हो, एंड उसके बाद फिर फाइनल्स में आके बस जीत जाए. कितनी आसानी से बोली ना, उसके बाद बस फाइनल में आके जीत जाए, बस सृष्टि यही चाहिए हमें. बट ऑल्सो नाउ दैट यू मेंशन्ड, आईसीसी ने बहुत इंटरेस्टिंग रखा है. दे हैव put arch rivals in one team. Yeah. India, Pakistan, Australia, England, Sri Lanka, Bangladesh. So a lot of drama, but I think just coming to your question, I'm a very hopeless, positive, optimistic fan. Keeping squad and everything aside, we will go for the win. हम जीतेंगे guys, खत्म. Over to you. What do you think? हम जीतेंगे guys. यार दिल से तो यही उम्मीद है, पर अगर मैं honestly बताऊँ तो इस साल कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है जो 2007 में हुआ था ना, जब इंडिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जब इंडिया वर्ल्ड कप के लिए गई थी. आई नो कि ये मेरा मानना है, पूरे देश को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी टीम से, और होनी भी चाहिए. आवर टीम इज़ गुड. बट मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे 2007 में हमने किसी ने सोचा नहीं था कि अच्छा T20 वर्ल्ड कप में हम जाएंगे, हम जीत कर भी आ जाएंगे. सीनियर प्लेयर्स ने बैकआउट भी किया था. They didn't even play that World Cup. अब अगर ये वर्ल्ड कप भी देखो तो हमारे पास सीनियर प्लेयर्स है, पर अगेन
I mean, Rohit and Virat didn't play the T20 format after 2022 का T20 World Cup. उसके बाद अफगानिस्तान वाला फॉर्मेट, मतलब अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज़ हुई थी जैन में, आई थिंक दिस ईयर T20, उसमें उन्होंने वापसी करी थी. तो बट IPL खेलते रहते तो T20 प्रैक्टिस में ज़रूर है. और अगेन इट्स रोहित एंड विराट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दे नो व्हाट टू डू, दे नो हाउ टू प्ले एंड दे नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन. तो वो हमें बहुत ज़्यादा, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन यार मेरे ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब मेरा ऐसे है कि हो जाएगा, मतलब मन से ऐसा है कि हो जाएगा. एंड आई फील कि यार एक्सपेक्टेशन ना रखना ना ज़्यादा अच्छा है. एक्सपेक्टेशन रखने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है. एंड 2023 वर्ल्ड कप के बाद 19 नवंबर के बाद एक चीज़ सीखी है मैंने ज़िंदगी में, कभी कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए. बट आई फील एंड आई होप कि इंडिया जीते. और यार आई बिलीव कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है. एक हैप्पी एंडिंग तो रोहित शर्मा भी डिजर्व करते हैं. एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो वो भी डिजर्व करते हैं. Only for that reason, yeah. T20 वो जीते हैं 2007 में, बट क्या एज अ कैप्टन जीत पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे? क्योंकि 2007 में वो नहीं थे. राइट. और विराट कोहली ने कहा था कि जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद वो कभी क्रिकेट के आजू बाजू ज़्यादा नहीं दिखेंगे. और वो चाहते हैं कि कोई रिग्रेट ना हो इसके बाद उनकी लाइफ में कि यार मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया. तो मैं भी चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में कोई रिग्रेट ना हो. ये रिग्रेट तो बिल्कुल ना हो कि यार T20 वर्ल्ड कप जीतना रह गया. कि RCB ट्रॉफी. चलो वो इस साल कभी ना कभी तो नाम देगा. बट आई होप कि ये जो हमारा T20 वर्ल्ड कप का ई साला कप नाम दे वाला सीन ही चल रहा है इतने सालों से, वो इस साल हो जाए ई साला कप नाम दूँ, हम जीत जाए. और वो भी आउट ऑफ ब्लू कि यार इंडिया जीत गई. मतलब अभी भी अगर आप देखोगे तो टॉप 4 की लिस्ट में इंडिया है सबके. बट अगर आप पूछोगे कि फाइनल कौन जीतेगा, आई फील बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इंडिया बोलेंगे. नहीं, बट आई थिंक द जनरल सेंटिमेंट इज इंडियंस आर सेइंग ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स आर सेइंग इंडिया इज गोइंग टू विन. बट आई जस्ट फील आउट ऑफ नोवेयर वेस्ट इंडीज विल गो एंड विन. गाइस, यू नेवर नो, राइट? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे वी विल गो फॉर, यू नेवर नो. आई मीन वो तो होपलेस पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फैन कह रहा है, बट यू नेवर नो. Honestly, I feel like when it comes to playoffs, you know, finals and everything, Australia is a different base. So हम expect कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है. Especially Australia Afghanistan match जो last year के World Cup में हुआ, Glenn Maxwell, the way he played. कहाँ से? No. So I'm just saying कि Australia stand a very strong chance. Yeah. But I don't know if you guys watch WWE or not. But if you guys know Undertaker or not, I believe आप लोगों को पता होगा. मैक्सवेल की वो इनिंग्स ना बिल्कुल वैसी थी जैसे अंडरटेकर कॉफिन में आते थे और अचानक से ऐसे उठ जाते थे एंड यूज्ड टू परफॉर्म. वैसे मैक्सवेल एकदम से ऐसे लग रहा था बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग, क्रैम्प्स एंड एवरीथिंग. बट कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड कप एंड कमिंग बैक टू इंडिया and win, I believe and I hope and I pray कि इंडिया जीते और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना मिले हमें. बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया फाइनल में नहीं होनी चाहिए. यार ऑस्ट्रेलिया को जीतते देख देख कर ना अब मैं थक चुकी हूँ. बस हो गया. मन भर लो यार ऑस्ट्रेलिया अपना जीतने से, क्योंकि इंडिया की जीतने की बारी आ चुकी है. एंड आई बिलीव, वी ऑल बिलीव दैट इंडिया विल विन. आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा ये वर्ल्ड कप? क्या इंडिया एटलीस्ट फाइनल पहुंचेगी? और अगर फाइनल पहुंची तो जिस तरह से सृष्टि ने बोला बस फाइनल पहुंच जाए और जीत जाए, तो क्या वो हो पाएगा? आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं कौन होगी फाइनल्स में? क्या इंडिया होगी? इंडिया के सामने कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ या फिर कोई और? बताइए. ये सारी चीज़ें अगले हफ्ते आपको फिर मिलेंगे जब इंडिया पाकिस्तान की गेम हो चुकी होगी, और तब करेंगे बहुत सारी बातें. होपफुली इंडिया तो जीत जाए, लेकिन आप भी जीत सकते हो और उसमें होप की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस करना ये है कि crickfan.tv पर जाना है, क्रिक विन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, गिव अवे सेक्शन में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम. क्रिकेट मर्चेंडाइज जीत सकते हैं आप, स्मार्टफोन्स जीत सकते हैं, स्मार्ट टीवी जीत सकते हैं, स्पीकर्स जीत सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ जो आप जीत सकते हैं. और आपको ये सब करना है एकदम आराम से नहीं, एकदम जल्दी जल्दी कीजिए. अभी जाइए और अभी के अभी पार्टिसिपेट कीजिए. और अगर आप सैटरडे को खेलते हैं तो आप बम्पर इनाम जीत सकते हैं, और ये सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त. तो किस बात का इंतज़ार है? जाइए अभी के अभी और पार्टिसिपेट कीजिए. और साथ साथ हमें ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और आपके हिसाब से कौन होगा विनर ऑफ द 2024 T20 वर्ल्ड कप.